گیا، میں بلدیہ ٹاؤن گیا، میں عیدی سینٹر گیا، وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. پھر وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اور سائما اسکوائر وہاں پر ان کے ہاں ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے، ان سے تعزیت کی، فاتحہ کی وہاں پر. اور پھر رات کو میں نے اپنا نارتھ ناظم آباد وہاں پر میں گیا، اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات ان سے ملاقات کی. تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی، اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے. وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فل فور جو حفاظتی اقدامات کرتے، اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹرز چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھیں، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں. تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی، اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ، اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا. میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا، سب کو مل کر اس موقع کے اوپر حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایات دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمور کریں عوام کی خدمت کے حوالے سے. اور میں کراچی کے عوام کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ان سے کل رات کو بڑا کھلے انداز میں ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور یقیناً انہوں نے پی ایم ایل این حکومت کی جو 2013 سے لے کر 18 تک جو خدمات ہیں ان کی ستائش کی، جو معاشی حالات کو جو بہتر بنایا گیا سی پیک کے حوالے سے، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور بجلی کے اندھیرے دور کرنے کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کی پرسنل جو انہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کروانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، وہ سب اس کے لیے وہ پوری تحسین اور اپریشیٹ کر رہے تھے. اور ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مشن کو ہر صورت آگے لے کے بڑھیں گے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں. اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے اس حوالے سے ذمہ داری کا اپنا بڑا مظاہرہ کیا، اور جو اصل جو حقائق ہیں وہ انہوں نے وہاں پر دکھائے اور بیان کیے. اور کوئی میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے. اسی طریقے سے میں جناب آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گیا تھا. وہاں پر ان کے بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان سے پھر یقیناً وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی. تو یہ ہے جو کراچی کے حوالے سے ہماری جو وزٹ کا جو تھا. جو میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں، تو میں نے کہا میں آپ سے کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے، اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے، تو کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے کہ دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی آپ لوگوں نے پلان کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور رہبر کمیٹی جو ہے یہ جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا، اس کے لیے وہ ساری ڈسکشن وہاں پر کریں گے. اس کے بعد پھر وہ اے پی سی کا ایجنڈا اور
जो अभी तमाम पार्टियों की मुशावरत के साथ सब ने मिलकर फैसला करना है कि APC के लिए कौन सा मौजू वक्त है और क्या उसका एजेंडा होगा। मगर मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मैंने अखबारात में मैंने पढ़ा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन जो है वो फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करें ज़रा। यानी अपोजिशन हिंदुस्तान की जो अपना जो बातें हैं, अपोजिशन वो बातें कर रही है। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ और मेरी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा? ये कौन शख्स कह रहा है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है? वो शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये कौन शख्स ये बात कर रहा है जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है कि अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान में बात कर रही है कि जब ये अमेरिका से लौटे तो कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि यू टर्न की ये तो वाकई उसके मास्टर हैं, ये उससे भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। और यानी और फिर कंटेनर पर खड़े होके क्या क्या बातें की, गद्दारी के इन्होंने किस तरह जो इल्ज़ामात लगाए और क्या कुछ नहीं कहा। आज वो शख्स ऑपोजिशन को ये कह रहा है कि ऑपोजिशन तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब मोदी ने अगस्त 2019 में कश्मीर के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े को और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया तो सबसे ज़्यादा शोर इसके ऊपर और एहतजाज ऑपोजिशन ने किया और कहा कि अपना इमरान खान साहब अपना हक अदा करें। आज उस ऑपोजिशन को आज ये कह रहे हैं। और फिर जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। हालांकि अगर कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता, मियाँ नवाज शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये तमाम जो इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। आज तक वो कराची नहीं गए। और जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनओरो मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनओरो मांगते हैं, जब इनके अंदर जो बैठे हुए हैं जो वज़ीर और मुशीर जो उनकी जब करप्शन की बात करते हैं, चाहे वो चीनी के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो आटे के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो तेल की कीमतें दुनिया में वो इस वक्त ज़मीन पे आ गिरी, आज पाकिस्तान में तेल और डीजल कीमतें आसमान से बातें कर रही, उसकी बात करते हो एनओर की बात करते हैं, गुर्बत की बात करें तो एनओर की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते तो एनओर की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का किरदार। तो मैं चाहता था कि ये जो इल्ज़ाम उन्होंने भौंडा और ज़्यादती की उसके हवाले से जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। एक सेकंड, एक मिनट उस्मान, आप बारी बारी अदनान में देती हूँ, अदनान में देती हूँ इसके बाद। मियां साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत तो नाकाम है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी बहुत सुस्त है कि वो उस तरह की एहतजाजी तहरीक नहीं चला रही कि लोगों की आवाज़ बन सके? और दूसरी चीज़, कल भी एक कोर्ट का डिसीजन था कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा सरेंडर करें, आज भी एक कोर्ट का डिसीजन है कि मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं। उनकी तबीयत में नसादा हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई अमल नहीं आ रहा कि वो कहे कि यार ठीक है इंसानी बुनियादों पर। देखिए, ये अपोजिशन सुस्त रवि का शिकार तो नहीं है। हम अपोजिशन में हैं। हम कराची में कल सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कराची की गलियों और सड़कों में हम फिरते आवाम को मिलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं नज़र नहीं आया, उनकी हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आई। तो ये मैं समझता हूँ कि और ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कराची के और रोशनियों का शहर है कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का गेटवे है, कराची पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है। कराची ने पाकिस्तान के तमाम सूबों के और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक माँ की तरह वहाँ पर अपनी गोद में लिया हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों को वो को रोज़गार देता है। कराची के अंदर जो टैक्स जमा होता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कराची शहर की, उसको इग्नोर करना तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि मियाँ नवाज शरीफ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोर्ट्स का जो हुक्म है वो सर आंखों पर, लेकिन और कब हम कोर्ट से भागे मुझे बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में
कैद बंद की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो सोबतें बर्दाश्त करते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा माजी में भी, अभी हालिया दौर में भी। और फिर मेरी ये जो एक एक्टिविटी है, इमरान खान नियाज़ी को बहुत इसकी अपना भाई बात सुन, इमरान खान नियाज़ी इसको बहुत इसको तकलीफ़ है कि ये अपना आ रहा है जा रहा है, तो इसको किस तरीके से मैंने बंद करना है। अल्लाह के हाथ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह के हाथ में है। मेरा मेरी जो भतीजी है उसने जेल काटी, मेरा बेटा जेल काट रहा है। मियाँ साहब भी जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी अदनान एक मिनट अदनान बारी। कौमी असम्बली में ये बात की थी कि अपोजिशन को इमरान खान ने चुनवा दिया दिमाग में। आप ही बताएं कि हुकूमत में बैठे हुए लोग करप्शन नहीं कर रहे, क्या वो सारे पाक हैं, क्या वो फरिश्ते हैं? मैंने यही कहा ना जी कि उनकी आधी काबीना से ज़्यादा लोग वहाँ पर करप्शन के अपने स्कैंडल हैं, उनको पूछने वाला नहीं। जिस तरह वो सब दूध के नहाए हुए हैं और पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। और मज़ीद ये इमरान खान नियाज़ी पूरी तरह, अगर ये नियाज़ी की विच हंटिंग के ऊपर वक्त ना ज़ाया करता और ऑपोजिशन के साथ जुल्म और ज़्यादती का जो वो बाज़ार गर्म किया हुआ उसको ना फोकस करता, तो वो वक्त जो उसने यहाँ ज़ाया किया है वो कौम की मईशत, कौम की हालत बदलने के ऊपर करता, दवाइयाँ मुफ्त देने के लिए करता, जो कि पंजाब में उसे बंद कर दिया। एक सेकंड पूरी बात सुन। तो मैं समझता हूँ कि हालात मुख्तलिफ होते। आज जो सूरत हाल है वो सिर्फ वो शख्स जो कि बिल्कुल बुग़्ज़ से भरा हुआ है, वो शख्स वो जो बिल्कुल कीना परवर है, मैं बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, वो शख्स जिसके अंदर इंतकाम की आग जो है वो सुलग रही है, उसको और कोई फुर्सत नहीं कि मैं जो आवाम के जो असल मसाइल हैं, एक बेवा को उसके कैंसर की मैं दवाई किस तरह दूंगा, वो बंद कर दी। हस्पतालों में जो दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी वो बंद कर दी। और आप देखें कि जो लोग हेपेटाइटिस से जो फैज़याब हो रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ मिल रही थी, वो बंद कर दी। उनको अगर एहसास और दर्द होता तो इन काम को जारी व सारी रखते, हमारे ज़माने के उनको बंद ना करते। इब्राहिम सर, मैं देती हूँ, उल्फत देती हूँ, इब्राहिम बात मैं देती हूँ आपको। इब्राहिम बात करें, इब्राहिम बात करें, ऐसे नहीं हो सकता। कल के आपने हालात भी वहाँ के देखे, लीडर्स जो है पॉलिटिकल सिनेरियो को भी आप समझते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है कराची के लिए? क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो हम सब दम जरूर बढ़ते हैं कराची के मसाइल का, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या? मैंने रात को अपना वहाँ पर एक दो जब आवाम का जो वहाँ पर इकट्ठ था तो वहाँ पर भी कहा, और रात को जो कराची के जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत के एंकर्स हैं वहाँ पर बैठे, उनसे भी बात हुई। और मैंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून को 2018 में अल्लाह ताला मौका देता तो मैंने जो वादा किया था अल्लाह ताला के फजल करम से और कौम से कि हम कराची की हालत को 2 साल में बदल देंगे। चूँकि हमें मौका नहीं मिला, और रात को फिर मैंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो हमने काम किया उसके तजुर्बे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कराची की सूरत हाल हम 2-3 साल में यकसर बदल देंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से बतौर एक टीम वर्क के वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ, और कराची को लाहौर नहीं, कराची को सही मानों में पेरिस बनाएंगे। आप बात कर लें, आप बारिश हो रही है, जल्दी कर लें। एक सेकंड, आपको पंजाब स्टेट का नाम दिया, सी पैक को मुस्लिम लीग नून देकर चली। चेयरमैन सी पैक लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा का एक असासों के हवाले से खबर सामने आई है। बीइंग सदर आपकी क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट मरियम नवाज दे रही है। अब मुस्लिम लीग नून के सदर आप हैं या मरियम नवाज? क्योंकि मरियम नवाज के पास भी वही होता है जो राना मसूद के पास है, नायब सदर का स्टेटमेंट। बस हो गए ना सवाल जवाब देने। कराची में इसका जवाब दिया। फिर सुनने भाई, मैं नवाज शरीफ ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, मैंने पेश किया, मरीम नवाज ने पेश किया, हमजा ने पेश किया। तो अगर हम पिछले 30 साल से एहतसाब भुगत रहे हैं तो जो हुकूमती जो भी ओहदेदारान है, कोई भी हो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल, उल्फत बात करना, आखिरी लास्ट क्वेश्चन। कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडरों ने, इवन आपके कायद ने, आपने, मरियम नवाज साहब ने, सब ने जेल काटी, सब रिहा भी हो गए, जमानतों पे हो गए। हमजा शहबाज साहब
हमजा शहबाज साहब ने ऐसा क्या कसूर किया कि वो अभी तक जेल में है? क्या आपको कहीं पे तोड़ना चाहती है? वो इसलिए कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है, वरना आप साद रफीक को देखें, सलमान रफीक साहब को देखें, राना सनाउल्लाह साहब को देखें, आप शाहिद अब्बासी साहब को देखें, आप एहसन इकबाल साहब को देखें, इन सब ने जेलें भुगती हैं। आज चीमा आज भी जेल में है और लोगों ने जेलें भुगती हैं। सिर्फ ये सारा कुछ अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, इनके आगे नहीं झुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।